आठ से देखो, welche drei Städte liegen ihrer Meinung nach ganz vorne? Arbeiten Sie in Gruppen? Diskutieren Sie die Gründe für Ihre Entscheidung? तो देखो कुछ सिटीज के नाम दे रखे हैं यहाँ पे: बार्सिलोना, berlin, hamburg, हेलसिंकी, म्यूनशन, ओस्लो, पेरिस, स्टॉकहोल्म, वैंकूवर और ज्यूरिख। विच सिटीज आर इन द थर्ड, मतलब सबसे आगे तीन सिटीज कौन सी हैं? किन के आधार पे? देखो कल हमने रीड करा था ये सारा। इंटरनेशनल unternehmen, सॉरी, वर्क लाइफ बैलेंस, Intensität der Arbeit, Insti Institutionen der Gesellschaft, Qualität der Staat। इनके आधार पे बताना है कि तीन कंट्रीज कौन से हैं जो टॉप में है ना? इन 10 में से बताना है आपको। कोशिश करो थोड़ा आपके हिसाब से। सब बर्लिन होगा और म्यूनशन होगा शायद। berlin आपके हिसाब से berlin होना चाहिए, राइट? नंबर वन पे यस क्या आना सर। चाहिए? ऐसा तो पता नहीं सर, लेकिन तीन ऐसे लग रहे हैं मुझे। बर्लिन, हाम्बुर्ग और म्यूनशन। हम्म, चलो कोई बात नहीं, अब ये तो रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, कुछ उस तब पता चलेगा, ठीक है। अब हम एक ऑडियो सुनते हैं डे वाला, है ना? Hören Sie einen Radiobericht? एक रेडियो रिपोर्ट सुननी है हमें। Vergleichen Sie mit Ihren Ergebnissen Achse। आपके हिसाब से नाम दे दो तीन, फिर ये ऑडियो चलाते हैं। ऑडियो के हिसाब से बताना है आपको कि कौन से, ऑडियो बताएगा आपके कौन से तीन सिटीज टॉप में आ रहे हैं ना। ओके सर। चलाओ ऑडियो, रेडी? यस सर। Die nächste Nachricht betrifft die beliebte Frage, welche Städte die höchste Lebensqualität haben. Die US-amerikanische Firma Kisi hat eine Studie veröffentlicht, in der die Work-Life-Balance von 40 ausgewählten Städten untersucht wurde. Dabei wurden die Themenbereiche Intensität der Arbeit, Institutionen der Gesellschaft und Lebensqualität der Stadt untersucht. Das Ergebnis dieses Städte-Rankings ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend. An der ersten Stelle liegt nämlich die finnische Hauptstadt Helsinki. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen hier die meiste Elternzeit, nämlich zusammen 1127 Tage, und sie haben 30 Urlaubstage im Jahr. Die Arbeitszeit ist im Durchschnitt 40,2 Stunden pro Woche. Das ist im internationalen Vergleich recht wenig. Dazu kommt ein gutes Gesundheits- und Bildungssystem. Die vielen Grünflächen in Helsinki und die Lage am Meer tragen auch dazu bei, dass die Stadt auf den ersten Platz kam. An der zweiten Stelle liegt München. München punktet besonders damit, dass die Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich sehr niedrig ist. Im Gegensatz zu Helsinki haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber nur 20 Tage Urlaub pro Jahr. Die Menschen in München können sich sehr sicher fühlen. Die öffentliche Sicherheit hat München den zweiten Platz gebracht. Auf Helsinki und München folgt an der dritten Stelle die norwegische Hauptstadt Oslo. Die durchschnittliche Arbeitszeit ist nur 38,9 Stunden pro Woche. Dahinter liegt Hamburg auf Platz 4 und Stockholm auf Platz 5. Stockholm hat besonders wenig Luftverschmutzung. An der sechsten Stelle liegt Berlin. Der Freizeitwert hat Berlin besonders viele Punkte gebracht. Nach Berlin folgt Zürich auf Platz 7. Die Grünflächen und der Zürichsee haben viel zu dieser Platzierung beigetragen, außerdem das gute Schulsystem. Barcelona liegt auf Platz 8 und Paris auf Platz 9. An der 10. Stelle ist das kanadische Vancouver gelandet. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wo Wien liegt, das in anderen Städte-Rankings oft auf den vorderen Plätzen landet. Wien war nicht unter den 40 Städten, die für die Studie ausgewählt wurden. So, nun geht es weiter mit Musik, und zwar dem neuen Hit von... एक ही पता चली, एक बार और सुनो।
देखो सारे पे नंबर दिया है उसने ऑडियो में ना, आप नंबरिंग करनी है इसमें आपको। देखो 10 दे रखे, 10 के 10 नंबर बताएं कौन सा किस नंबर पे, राइट। चलाओ एक बार और प्लीज। यस सर। Die nächste Nachricht betrifft die beliebte Frage, welche Städte die höchste Lebensqualität haben. Die US-amerikanische Firma Kisi hat eine Studie veröffentlicht, in der die Work-Life-Balance von 40 ausgewählten Städten untersucht wurde. Dabei wurden die Themenbereiche Intensität der Arbeit, Institutionen der Gesellschaft und Lebensqualität der Stadt untersucht. Das Ergebnis dieses Städte-Rankings ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend. An der ersten Stelle liegt nämlich die finnische Hauptstadt Helsinki. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen hier die meiste Elternzeit, nämlich zusammen 1127 Tage, und sie haben 30 Urlaubstage im Jahr. Die Arbeitszeit ist im Durchschnitt 40,2 Stunden pro Woche. Das ist im internationalen Vergleich recht wenig. Dazu kommt ein gutes Gesundheits- und Bildungssystem. Die vielen Grünflächen in Helsinki und die Lage am Meer tragen auch dazu bei, dass die Stadt auf den ersten Platz kam. An der zweiten Stelle liegt München. München punktet besonders damit, dass die Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich sehr niedrig ist. Im Gegensatz zu Helsinki haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber nur 20 Tage Urlaub pro Jahr. Die Menschen in München können sich sehr sicher fühlen. Die öffentliche Sicherheit hat München den zweiten Platz gebracht. Auf Helsinki und München folgt an der dritten Stelle die norwegische Hauptstadt Oslo. Die durchschnittliche Arbeitszeit ist nur 38,9 Stunden pro Woche. Dahinter liegt Hamburg auf Platz 4 und Stockholm auf Platz 5. Stockholm hat besonders wenig Luftverschmutzung. An der sechsten Stelle liegt Berlin. Der Freizeitwert hat Berlin besonders viele Punkte gebracht. Nach Berlin folgt Zürich auf Platz 7. Die Grünflächen und der Zürichsee haben viel zu dieser Platzierung beigetragen, außerdem das gute Schulsystem. Barcelona liegt auf Platz 8 und Paris auf Platz 9. An der 10. Stelle ist das kanadische Vancouver gelandet. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wo Wien liegt, das in anderen Städte-Rankings oft auf den vorderen Plätzen landet. Wien war nicht unter den 40 Städten, die für die Studie ausgewählt wurden. So, nun geht es weiter mit Musik, und zwar dem neuen Hit von... हाँ जी, डन। फर्स्ट पे क्या आया बताओ? हेलसिंकी सर। हेलसिंकी। हेलसिंकी, या सेकंड पे? म्यूनिशन। म्यूनशन। म्यूनशन। द्राई पे? ऑस्लो। ओस्लो। ओस्लो इज कैपिटल ऑफ स्टॉकहोम। आई थिंक नॉर्वे की है ओस्लो तो कैपिटल। हाँ जी, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो तो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ऑडियो में था आई थिंक। हम्म, नॉर्वे की है, ओस्लो नॉर्वे की है ना। सही है। 3 नंबर ही बताने थे वैसे तो, बाकी सारा बोला उसने। बेर्लिन का नंबर कहाँ पे आया था? आई थिंक 8 था क्या? बर्लिन सिक्स। सिक्स सर। सिक्स 6th। सिक्स। और यस 8th शायद बार्सिलोना था। यस सर। और वैंकूवर का नंबर 10 था शायद, या 9 था, ऐसा कुछ बोला था। तो 10 था 10th। सर। हाँ, चलो बाकी अपन 3 ही पता करने थे टॉप। ओके, नीचे आ जाओ। ह्यूरेंजी दी फियर। ओके, ए में देखो, वास इन दी बिलीव टेस्टन स्टेटर इन ईरमलैंड, कि तुम्हारे सिटीज में सबसे फेवरेट
सिटी मतलब तुम्हारी कंट्री में सबसे फेवरेट सिटीज कौन कौन से हैं बताओ। हमारे यहाँ तो नंबर आएगा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, और बताओ अहमदाबाद। इलाहाबाद नहीं है, उसका नाम प्रयागराज हो गया है। हाँ जी, प्रयागराज, बनारस, है ना। तो कुछ ये फेमस और भी हो सकते हैं, खूब सारे सिटीज है, एक से एक अच्छा सिटी है ना। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की बात करना चाह रहे हैं अपने पास, है ना। अब देखो 9 आप पे आ जाओ। ह्यूरन जी डी फियर पर्सोनन वेयर जाक्ट वास। अपने को ऑडियो सुनना है, बताना है कौन क्या कहता है। क्रोसेंजियन क्रॉस करना है आपको सुन के। तो म्यूनशन, हाम्बुर्ग, बेर्लिन और श्यूरिच, 4 सिटीज दिए हुए हैं यहाँ पे। तो पहले ये पढ़ लो एक बार। eins, zwei, drei, vier, fünf, देन मैं आपको ऑडियो प्ले करता हूं, है ना। Dort, wo ich wohne, arbeitet man in Durchschnitt länger als in den anderen Städten. मैं जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे आदमी ज्यादा लंबा काम करता है कंपेयर टू दूसरे अनदर सिटीज, राइट। और die Stadt tut auch etwas für ärmere Menschen, was ich sehr wichtig finde. जो सिटी है वो गरीब लोगों के लिए कुछ करता है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना। Ich lebe gerne in einer Stadt, wo der Arbeitstag nicht so früh beginnt. वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे सिटी में रहता हूं जहां पे काम वर्किंग डे है वो जल्दी ज्यादा अर्ली स्टार्ट नहीं होता। ऐसे कौन है वो आदमी, पता करना है। चौथा आदमी कह रहा है दास वास eine Stadt in ranking attractive mark, जो रैंकिंग में अट्रैक्टिव कर रहा है। kann für die Menschen auch Nachteile bringen, वो भी आपके लिए डिसएडवांटेज लेके आ सकता है, राइट। और पांचवा das Wetter ist nichts, weather is nothing, was im Ranking gewertet wird। मतलब ये कह रहा है कि वेदर को आप रैंकिंग में नहीं जोड़ सकते। वेदर से क्या फर्क पड़ता है, वेदर डिपेंड करता है तो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिपेंड करती है उस पर हिसाब से देखा जाए तो, है ना। डन। ऑडियो चलाऊं दोस्तों, यस सर। बताओ। जी सर। वेटरन का मतलब तू यहाँ पर रेट है, टू रेट करना एक तरह से ना, ग्रेड करना, ग्रेडिंग करना, एवुलेट करना बोल सकते हो ना। चलाओ ऑडियो, रेडी। Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade haben wir von einem internationalen Städteranking berichtet. 4 Städte aus den deutschsprachigen Ländern liegen dabei in den Top 10, genauer sogar unter den besten 7. Heute haben wir Gäste zugeschaltet, die in den Städten München, Hamburg, Berlin und Zürich leben oder lange gelebt haben. Frau Lea Winter aus München. Grüß Gott. Herrn Jens Ende aus Hamburg. Moin. Frau Jella Bosowitsch aus Berlin. Guten Tag. Und Herrn Urs Odermatt aus Zürich. Grüezi. Schönen Tag Ihnen allen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Beginnen wir gleich mit Ihnen, Frau Winter. Lebt es sich wirklich so gut in München? Ja, in München kann man sehr gut leben, keine Frage. In der Studie heißt es auch, dass München eine Stadt ist, wo man besonders sicher lebt. Das glaube ich allerdings nicht. Es gibt auch in München Ecken, wo ich mich sehr unsicher fühle. München liegt in dem Ranking aber so gut, weil die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Das ist natürlich schön. Das heißt aber auch, dass immer mehr Menschen in München arbeiten wollen und eine Wohnung brauchen. Die Mieten und die Preise für Wohnungen sind deshalb extrem hoch. Die Attraktivität der Stadt hat schon 2 Seiten, eine gute und eine weniger gute. Gilt das so ähnlich auch für Hamburg, Herr Ende? Na klar. Man hat in Hamburg viele Wohnungen gebaut. Im Hafenviertel. Aber die sind schon sehr, sehr teuer. Aber Hamburg ist auch auf diesem guten Platz, weil es ein gutes Sozialsystem gibt. Die Stadtregierung versucht, ein attraktives Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen. Für die Kinderbetreuung, für sozial schwache Personen, für Leute mit weniger Geld. Das finde ich so toll an Hamburg. Und natürlich ist die Stadt für Besucher attraktiv. Mit dem großen Kulturangebot, dem Hafen, den Geschäften. Das bringt der Stadt auch Geld und Wohlstand. Und das Alltagsleben ist ziemlich entspannt, finde ich.
Gibt es auch etwas Negatives in Hamburg? Also, das Hamburger Wetter ist ja bekannt, leider. Darf ich es sagen? Das Hamburger Schiedwetter, also viel Regen und Wind. Das hat zum Glück keine Rolle gespielt bei diesem Ranking. Und nun zu Ihnen, Frau Bosovic. Was sagen Sie als Berlinerin dazu, dass zwei andere deutsche Städte vor der Hauptstadt liegen? Das ist mir echt egal. Ich finde die beiden Punkte sehr schön, die Berlin nach vorne gebracht haben. Der erste Punkt sind die tollen Freizeitmöglichkeiten. Von Clubs über Kulturangebote bis zu Grünflächen und Seen. Welche Großstadt hat denn schon sowas wie den Wannsee so nah? Der zweite Punkt ist für mich als Arbeitnehmerin noch viel wichtiger. Viele Firmen beginnen recht spät am Morgen. Der durchschnittliche Arbeitsbeginn ist um 9:53 Uhr. Das ist doch toll. Stimmt. Erreicht Zürich auch einen so guten Platz, weil man länger schlafen kann? Was meinen Sie, Herr Odermatt? Nein, davon weiß ich nichts. Eher liegt Zürich vorne, weil es kaum Arbeitslosigkeit gibt. Die Grünflächen bringen Zürich ebenfalls Punkte im Ranking. Die sind schon sehr schön. Und natürlich der Zürichsee. Dazu kommt, dass das Schul- und Gesundheitssystem in der Schweiz sehr gut ist. Was die Work-Life-Balance betrifft, da ist Zürich nicht so gut. Hier arbeiten die Arbeitnehmer im Durchschnitt 42,9 Stunden pro Woche. Länger als in vielen anderen Städten und Ländern. Zürich ist aber auch eine Stadt, wo das Leben sehr teuer ist. Trotzdem haben diese beiden Punkte es nicht geschafft, das Ergebnis nach unten zu ziehen. Vielen Dank. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck bekommen, was für dieses Ranking wichtig war. Wir reden gleich noch weiter über das. Once more, noch einmal. मित्रों, बताइए एक बार और चलाएं. Yes, sir. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade haben wir von einem internationalen Städteranking berichtet. 4 Städte aus den deutschsprachigen Ländern liegen dabei in den Top 10, genauer sogar unter den besten 7. Heute haben wir Gäste zugeschaltet, die in den Städten München, Hamburg, Berlin und Zürich leben oder lange gelebt haben. Frau Lea Winter aus München, Grüß Gott. Herrn Jens Ende aus Hamburg, Moin! Frau Jella Bosovic aus Berlin Guten Tag. und Herrn Urs Odermatt aus Zürich. Grüezi. Schönen Tag Ihnen allen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Beginnen wir gleich mit Ihnen, Frau Winter. Lebt es sich wirklich so gut in München? Ja, in München kann man sehr gut leben, keine Frage. In der Studie heißt es auch, dass München eine Stadt ist, wo man besonders sicher lebt. Das glaube ich allerdings nicht. Es gibt auch in München Ecken, wo ich mich sehr unsicher fühle. München liegt in dem Ranking aber so gut, weil die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Das ist natürlich schön. Das heißt aber auch, dass immer mehr Menschen in München arbeiten wollen und eine Wohnung brauchen. Die Mieten und die Preise für Wohnungen sind deshalb extrem hoch. Die Attraktivität der Stadt hat schon 2 Seiten, eine gute und eine weniger gute. Gilt das so ähnlich auch für Hamburg, Herr Ende? Na klar. Man hat in Hamburg viele Wohnungen gebaut. Im Hafenviertel. Aber die sind schon sehr, sehr teuer. Aber Hamburg ist auch auf diesem guten Platz, weil es ein gutes Sozialsystem gibt. Die Stadtregierung versucht, ein attraktives Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen. Für die Kinderbetreuung, für sozial schwache Personen, für Leute mit weniger Geld. Das finde ich so toll an Hamburg. Und natürlich ist die Stadt für Besucher attraktiv. Mit dem großen Kulturangebot, dem Hafen, den Geschäften. Das bringt der Stadt auch Geld und Wohlstand. Und das Alltagsleben ist ziemlich entspannt, finde ich. Gibt es auch etwas Negatives in Hamburg? Also, das Hamburger Wetter ist ja bekannt, leider. Darf ich es sagen? Das Hamburger Schiedwetter, also viel Regen und Wind. Das hat zum Glück keine Rolle gespielt bei diesem Ranking. Und nun zu Ihnen, Frau Bosovic. Was sagen Sie als Berlinerin dazu, dass zwei andere deutsche Städte vor der Hauptstadt liegen? Das ist mir echt egal. Ich finde die beiden Punkte sehr schön, die Berlin nach vorne gebracht haben.
Der erste Punkt sind die tollen Freizeitmöglichkeiten. Von Clubs über Kulturangebote bis zu Grünflächen und Seen. Welche Großstadt hat denn schon sowas wie den Wannsee so nah? Der zweite Punkt ist für mich als Arbeitnehmerin noch viel wichtiger. Viele Firmen beginnen recht spät am Morgen. Der durchschnittliche Arbeitsbeginn ist um 9:53 Uhr. Das ist doch toll. Stimmt. Erreicht Zürich auch einen so guten Platz, weil man länger schlafen kann? Was meinen Sie, Herr Odermatt? Nein, davon weiß ich nichts. Eher liegt Zürich vorne, weil es kaum Arbeitslosigkeit gibt. Die Grünflächen bringen Zürich ebenfalls Punkte im Ranking. Die sind schon sehr schön. Und natürlich der Zürichsee. Dazu kommt, dass das Schul- und Gesundheitssystem in der Schweiz sehr gut ist. Was die Work-Life-Balance betrifft, da ist Zürich nicht so gut. Hier arbeiten die Arbeitnehmer im Durchschnitt 42,9 Stunden pro Woche. Länger als in vielen anderen Städten und Ländern. Zürich ist aber auch eine Stadt, wo das Leben sehr teuer ist. Trotzdem haben diese beiden Punkte es nicht geschafft, das Ergebnis nach unten zu ziehen. Vielen Dank. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck bekommen, was für dieses Ranking wichtig war. Wir reden gleich noch weiter über das. ओके सो बताओ फर्स्ट वाले ने क्या बोला? शुरिक, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर। फर्स्ट वन इज शुरिश। ओके, सेकंड वाले बंदे ने क्या बोला? हाँ जी बोलो। हामबुर्ग बोला था बेटा, या हामबुर्ग। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. हामबुर्ग बोला था, राइट। थर्ड वाले ने क्या बोला? थर्ड वाले ने बर्लिन बोला था, राइट। फोर्थ वाले ने क्या बोला? नहीं, फोर्थ वाले ने बोला ना म्यूनशन। और फिफ्थ वाले ने क्या बोला था? नहीं, फोर्थ वाले ने म्यूनशन भी बोला, हामबुर्ग भी बोला था और श्यूरिश भी बोला था। तीन बोले थे उसने, और फिफ्थ वाले ने बोला था आपका हामबुर्ग। या हाँ जी बताइए। बताओ, डन? Yes, sir. आगे चलें। अब हमें क्या यूज करना है? रिलेटिव जैसे मिट वास und wo. Lesen Sie noch einmal die Aussagen in 9a. Markieren Sie in den Sätzen die Ausdrücke auf die sich was und wo beziehen. 9a में आए हैं, आपको देखो अंडरलाइन करो, डॉट के आगे आ रहा है देखो वो, राइट। und वास भी आ रहा है, देखो सेकंड एग्जांपल में दिख रहा होगा आपको। ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, डॉट, ये देखो अगला वास, वो, वास। देखो समझ रहे हो? हाईलाइट करो इनको। देखो ग्रामेटिक दिया हुआ है, आगे चले। ये हाईलाइट कर लिया हो आप लोगों ने तो हटा दूं? देखो अगले पेज पे आओ, यहां पे देखो ग्रामेटिक में दिया हुआ है, यहां पे ध्यान देना एक बार। रिलेटिव जैसे मिट वास उन वो, राइट। वास बेसीट जिश auf ganze जैसे, कंप्लीट सेंटेंस के लिए वास यूज कर सकते हैं। ऑर्डर auf प्रोनोमेन जैसे alles, etwas, nichts oder das। alles मतलब एवरीथिंग, etwas मतलब समथिंग, nichts का मतलब होता है नथिंग,
और दास फॉर आता है दिस या दैट के लिए, है ना, डिपेंड करेगा, द के लिए भी आ सकता है, लेकिन वो किसको रिलेट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। और वो विषय बेसीट जिस ऑफ ऑट्स अनगाबन, प्लेसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब जैसे से में आपको आइडेंटिफाई करना है, वास आएगा या वो आएगा, बताओ, टेक योर टाइम। रीड करो और कोशिश करो। सब फर्स्ट में वास आएगा शायद। या फर्स्ट में वास आएगा क्योंकि आलस आ गया, देखो अभी बात करी थी, ठीक है। सेकंड में देखो प्लेस की बात हो रही है तो क्या आएगा, वो आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। थर्ड में बताओ क्या आएगा, निस आ गया तो क्या आएगा, वास, वास Was. आएगा। वास आएगा निस में, ओके। और प्लेस की बात हो रही है, देखो फोर्थ में आइंशोनर और स्फ्यूमिश, Wo. तो क्या आएगा वो। और इन गिफ्ट एस फील प्लेस से, प्लेस से की बात हो रही है तो क्या आएगा वो। और सिक्स मियर गेफेल्ट फीलस निस, तो क्या आएगा सिक्स में बताओ, वास। Was. यस, वास। जस्टिस। इन इंडियन लिख सकते हो ना, जगह इसलिए छोड़ा हुआ है। इन जयपुर गिफ्ट एस फील प्लेस, वो मान है, इस तरह से करके सेंटेंस बना सकते हो आप। ये इन जयपुर गिफ्ट एस फील प्लेस, वो इस इमर वीडर हिंगे, ऐसे बोल सकते हो। तो इनको पूरा करने की कोशिश करना, कुछ ही हो सकता है आपके हिसाब से सेंटेंस को पूरा करना, सिर्फ आपको रिलेटिव के हिसाब से वास या वो ऐड कर देना है यहाँ पे, और वो सेंटेंस पूरा करना है, कर सकते हो अपने हिसाब से सेंटेंस पूरे करने की कोशिश करना है ना। Ich musste in einer Stadt wohnen, देखो वो ich viele Freunde habe, लिख सकते हैं इसको। सेकंड वाले का देखो मैंने ऐसे लिखने की कोशिश करी है, ich möchte in einer Stadt wohnen, मैं एक ऐसे सिटी में रहना चाहता हूं जहां वो ich viele Freunde habe, जहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आप हो सकता है अलग लिख दो कुछ, है ना। बताओ डन और नॉट डन, डन ये सर। समझ ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। Yes, sir. आगे। चलिए आगे। तब यहां पे क्या करना है, उनजेर स्टट जोल बेसर बेसर वेडन, हमारे सिटी को अच्छा बेटर होना ही चाहिए। Arbeiten Sie zu viert, jeder wählt eine Rolle und notiert Argumente für seine ihre Projekte. Spielen Sie dann die Diskussion, gehen Sie auf die unterschiedlichen Startpunkte ein und vermitteln Sie। तो देखो यहाँ पे बात हो रखी है, चीजें दे रखी है, देखो स्टार्ट राट, स्टार्ट राट क्या होती है, सिटी काउंसिल, और स्टार्ट रेटेरिन प्योर फैकेयर, तो डिस्कशन होगा। तो ये तो स्टार्ट राट की बात हो रही है, फेयर किया, फेयर की मतलब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। पार्क हाउस इम सेंट्रम, कितने पार्क हाउस है, पार्किंग प्लेस है, फुल मिलियन, मतलब 5 मिलियन व्हीकल्स के लिए मान लो, है ना। ओके, नोए लीनियर फ्यूडी स्टासनमान, मतलब ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है, ये कहना चाह रही है कि हम 5 मिलियन नए पार्किंग प्लेसेस बनाएंगे फे में भी है,
और नोए लीनियर फ्यू दी स्टासेनबान, तो ये एक नई लाइन बना रहे हैं ट्रेम के लिए। 11 मिलियन, ये कुछ बात करी है इन्होंने। ओके, अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं फॉर वोन बाउ, तो इस पर डिस्कशन हो सकता है। आगे देखो, मतलब कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। वोन बाउ मतलब अपार्टमेंट बनाना या इस तरह की बात हो रही है। देखो, नोए वोनुंगन am ran der Stadt, मतलब सिटी में करीब 7 मिलियन अपार्टमेंट बनाने की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। और उम्बाउ फोन ब्यूरो सु वोनुंगन, वो कह रहा है कि सर 7 मिलियन वो बजट है सर, शायद उसके लिए जो अलोकेट किए जा रहे हो सकता है, हैं, उसके लेकिन ऊपर जो ऊपर, 2 लाइन दे रखे हाँ हैं। ऊपर लिखा हुआ है, राइट, हम ये पढ़ा नहीं हमने, है ना, सॉरी। Der Stadtrat von Wilburg kann in den nächsten Jahren nur wenige Projekte realisieren. Es gibt maximal 20 Millionen Euro बजट, या 20 यूरो बजट है उनके पास, 20 मिलियन यूरो का, ठीक है। Über Zeugen Sie die Inderen ihre Projekte umzusetzen. तो आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि भाई इतना पैसा हम इस पे खर्च करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे इतना होगा, फेयर पे इतना होगा, तो अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, देखो, है ना। तो नोए वोनुंगन के लिए 7 मिलियन खर्च कर रहे हैं ये। उम्बाउ फोन ब्यूरो सु वोनुंगन, यानी कि ऑफिस की जगह पे अपार्टमेंट बनाने की बात हो रही है यहां पे, समझ रहे हो। उम्बाउ रिनोवेशन बोल सकते हो चाहो तो, या अल्टरेशन बोल सकते हो, रीबिल्डिंग बोल सकते हो। ऑफिस की जगह बिल्ड अपार्टमेंट बनाने की पे कितना खर्च कर रहे हैं, 6 मिलियन। ओके, और अगला है देखो, नोएबाउ फोन कीटा उन शूले। कीटा क्या होता है आपका, जैसे बच्चे जहां रहते हैं ना, डे केयर, डे केयर को बोलते हैं कीटा। डे केयर नहीं होता, छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसको कीटा बोलते हैं, है ना। और स्कूल में, स्कूल के लिए करीब 9 मिलियन का बजट बना रहे हैं ये लोग। और रिनोवियरुंग फोन स्वाई आल्टन शूलन, पुराने जो 2 स्कूल हैं उनका रेनोवेशन कर रहे हैं, उसमें 5 मिलियन यूरो खर्च करने का प्लान है इनका। और अगला देखो, कुल्टूर ट्रेफपुंक्ट für alle Bürger Bürgerinnen, मतलब कल्चर कोई सेंटर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे लोग कल्चर से मिल सके, यहाँ पे कॉन्सर्ट हो सके या थिएटर हो सके, उसके लिए 6 मिलियन का बजट है। स्पोर्ट हाल में ओपन आर्ट एरेना, ये करीब 9 मिलियन का इनका बजट रहेगा। तो ये चीज दे रखा है इन्होंने, राइट। तो वीडियो है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे देखो, एक रेड मेटल दे रखी है, auf Standpunkt eingehen। स्टैंड पुंक्ट क्या होता है, स्टैंड पुंक्ट, सॉरी, हाँ जी, पता है क्या, नहीं पता? नो नहीं, स्टॉप। स्टैंड पुंक्ट एंगल बोल सकते हो, एस्पेक्ट बोल सकते हो, है ना। आइनगेन मतलब आइनगेन, टू अराइव। तो यहां पे कुछ जो रेड मेटल लिखे हुए हैं नीचे, वो रेड मेटल अपने को यूज कर सकते हो आप ये इस चीज पे बोलने पे। तो देखो, das ist nur ein Aspekt, man muss auch daran denken, आदमी को इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। अपना पक्ष रखने की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपन ऊपर, जो रेड, जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं या स्टार्ट राट बात कर रही है, जो टॉपिक बात कर रहे हैं उन पे। वी müssen da auf mehrere Aspekte achten, हमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। एस्टेंस, स्वाइटेंस und drittens, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एस करके नाम। पार्किंग प्लेस की बात कर लो फर्स्ट में, सेकंड में आप बात सकते हो स्टासन मान की बात कर सकते हो, शूले रेनोवियरिंग की बात कर सकते हो, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं।
ओके, आगे चलें। दस इन इंटरेसांटे पुंक्ट। ओके, यहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, बट कुछ चीज मिसिंग है यहां पे। अबर फेल्ट नॉक, अब पाक प्लेस से फेल्ट नॉक ऐसे लिख सकते हो आप। हम्म? अब पार्क प्लेस से फेलन नॉक ऐसे लिखना पड़ेगा कि पार्किंग प्लेसेस की कमी है। माइनर नाइन माइनोंग नाक, मेरी ओपिनियन के हिसाब से हमारे यहां अबर पार्क्स फेलन नॉक, मतलब पार्क्स नहीं है हमारे सिटी में। अबर नाटूर फेल्ट नॉक, नेचर मिसिंग है। अबर ग्रून फ्लेशे फेल्ट नॉक, बोल सकते हो कि ग्रीन एरिया की कमी है हमारे यहाँ, ये ऐसे यूज कर सकते हैं। वी dürfen aber nicht außer acht lassen जी फेर्गेसन aber das। तो अपने आर्गुमेंट कैसे देने हैं उस पर बात हो रही है सारी ना। फिर मिटल, आपको कोई बात करनी है देखो। Ich glaube Sie sehen nur eine Seite, wichtig ist auch, मतलब आप सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष तो आप देख ही नहीं रहे हो। Haben Sie auch ein konkretes Beispiel dafür? कोई सॉलिड एग्जाम्पल है आपके पास इसके लिए? वेल्चे लोजन schlagen Sie vor? कौन सा सजेशन है आपके पास? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का कोई सजेशन है आपके पास कि क्या करना चाहिए? राइट? Ich denke, Sie haben beide रेस्ट, या आप सभी सही हो, ऐसी कोई बात करनी है आपको। लासन जी बिटे आउस रेडन वार नॉक निस्ट फैटिश, मैं रेडी नहीं था, मैं तैयार नहीं था। वी वुडन unterbrochen was wollten Sie noch sagen? और भी कुछ कहना चाहते थे क्या आप? Sie wurden unterbrochen, unterbrochen का मतलब क्या होता है? इंटरप्टेड। इंटरप्टेड को वो यूज करते हैं, आप इंटरप्टेड थे, है ना। जी वुडन unterbrochen, पासिव है ये, पास्ट टेंस, वेडन का वुडन हो जाता है। आपको इंटरप्ट किया गया था ऐसे बोल सकते हो, है ना। आप कुछ कहना चाहते थे, तो आप अपनी की बात रखनी है या वो कोई बात रखनी है, तो ये रेड मेटल अपन यूज कर सकते हैं इन चीजों पे। तो उस पर कोशिश करना। राइट, नीचे आ जाओ। Aussprache, Texte vorlesen, das Zeichen helfen, lesen Sie den Test leise। वो माखंडी पाउजन, ब्रेक कहां पे लोगे आप? वो दिया हुआ है यहाँ पे देखो। Ich wohne in Köln, फिर वहां पे ब्रेक लिया है। Mir gefällt die Stadt sehr gut, पूरे स्टॉप पे रोकोगे। Ich verstehe allerdings nicht, फिर रोकोगे हल्का सा। मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूं, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो, एक बार आराम से, धीरे धीरे पढ़ना है, पढ़ के देखो एक बार इसको।
चले, अब मैं ऑडियो चला देता हूं, सुनो एक बार कहां पे ब्रेक लेना है, राइट? सुनिए। Ich wohne in Köln. Mir gefällt die Stadt sehr gut. Ich verstehe allerdings nicht, warum sie in sämtlichen Rankings immer so weit hinten liegt. Ich kann mir keine schönere Stadt vorstellen. Warum gefällt es mir in Köln so gut? Die Antwort ist ganz einfach. Hier gibt es schöne Museen, viele gute Theater und Kinos, kleine Cafés, den Rhein mit den vielen Schiffen und. Noch wichtiger ist, dass hier meine Freunde wohnen. Außerdem habe ich eine sehr gute Arbeitsstelle. देखो, इस तरह से रहेगा ना। देखो मैंने जो लाइन खींची है, यहाँ पे ब्रेक्स लेने हैं आपको, एक बार सुन लो। देखो एक बार समझने की कोशिश करो। Ich wohne in Köln. Mir gefällt die Stadt sehr gut. Ich verstehe allerdings nicht, warum sie in sämtlichen Rankings immer so weit hinten liegt. Ich kann mir keine schönere Stadt vorstellen. Warum gefällt es mir in Köln so gut? Die Antwort ist ganz einfach. Hier gibt es schöne Museen, viele gute Theater und Kinos, kleine Cafés, den Rhein mit den vielen Schiffen und. Noch wichtiger ist, dass hier meine Freunde wohnen. Außerdem habe ich eine sehr gute Arbeitsstelle. क्लियर? एनी डाउट? देखो मैं जो लाइन खींची है यहाँ पे, रेड से वहां से आपको पाउज लेना है, ब्रेक लेना है ना। फुल स्टॉप के बाद रुकते हो आप, उंट से पहले रुकते हो क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा होता है ना। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी तरह का। इंस्यूरिश, श्यूरिश, श्यूरिक, ज्यूरिक बोलते हो आप ना, इंग्लिश में ज्यूरिक। अरे ज्यूरिक बहुत सुंदर शहर है भाई, स्विट्जरलैंड का। देखो फोटो नहीं दिख रही आपको? बहुत अच्छी जगह है, महंगी भी, महंगा बहुत है स्विट्जरलैंड ना। लैंडेस्कुंडे। तो देखो वास विसन जी über die Schweiz sammeln Sie im Kurs। स्विट्जरलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं? लेजन जी एमाज ब्लॉग, एमा का ब्लॉग आपको पढ़ना है। वेल्शर अपसनेट आब इस दे पासु वेल्शम फोटो। एक काम करो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखो यहां पे आपको पैराग्राफ दे रखे हैं, आ, बे, से और डे। ये पढ़ के आपको बताना है। ऊपर 4 फोटो हैं, कौन से फोटो पे कौन सा पैराग्राफ मैच करेगा। 5 मिनट लो आराम से। क्लियर? और फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे बाद में मिलके, है ना। क्लियर? ऑफ गावे समझ में आया कि नहीं आया? माइने एस्टन टागे इन स्यूरिश, इसको रीड करो। यहां पे पैराग्राफ दे रखे हैं, आ, बे, से, डे। इनको फोटोज के हिसाब से मैच करना है। यहां पे देखो फोटो 1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं, मैच करिए प्लीज।
नहीं कहीं नहीं कहीं डन, बताओ, हो गया दोस्तों? यस सर। So 1 minute. हम्म, डन। फर्स्ट का क्या आएगा? फर्स्ट फोटो कौन सा है? डे सर शायद। डे। डे इज द राइट आंसर। फर्स्ट का डे। सेकंड का? सेकंड का बताओ। सर सेकंड का मुझे कंफ्यूजन है, डे होगा या ये होगा, आ होगा। पलाश, सेकंड का क्या किया है? So मैंने से किया है. ओके। प्रमोद और मनीष भैया, क्या किया आपने सेकंड का? बताओ भाई। से इज द राइट आंसर। ओके। थर्ड का? So day. नहीं, डे तो पहले ही हो गया, फर्स्ट का था डे तो। थर्ड का बे। और फियर का आर। राइट। माइने एस्तन टाग इन श्यूरिश। तो कौन रीड करेगा? एक सेकंड। अरे रोज रीड कर रहे फर्स्ट वाला। माइने एस्तन टाग इन श्यूरिश। Seit einer Woche wohne ich jetzt in Zürich mit रुकना, अभी पढ़ा था। हाँ, कौमा पे रुकना है भाई। इंश्योरिश। in Zürich. हम्म। Mit सर इसको क्या बोले? सिरका। सिरका। ये सर ये ओरो यूरो है ना? कौन सा यूरो? यूरो कहां से आ गया? नहीं नहीं सर इसको अच्छा फियर ein 115.000 415.000 Einwohner die größte Stadt der स्वाइश। Schweiz. तो रुको। जाइट आइनर वोके वोनिश यस इन श्यूरिश। मैं एक वीक से अभी श्यूरिक में रह रही हूँ।
और यहाँ पे 4,15,000 आइनवोनर है, रहने वाले लोग हैं। और ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा सिटी है। 4 लाख लोगों पे सबसे बड़ा हो गया यहाँ। जयपुर की आबादी कितनी है? 60 लाख, 6 मिलियन पीपल लिव हेयर, Und, राइट। und ich muss sagen, और आई हैव टू से, es gefällt mir wirklich gut hier. मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। Die ersten Tage habe ich genutzt, गिनुस्ट, die Stadt ein bisschen kennenzulernen. तो जो पहले दिन थे ना, वो मैंने किस में यूज किए? सिटी को, थोड़ा सा सिटी को जानने पहचानने में, कि सिटी भाई कौन सी चीज कहाँ पे है, इस तरह से। Ich bin zwar ein paar Mal falsch abgebogen, अब गेबोगन, aber ich habe alle Bekannten sehen, जेन्स व्यूडिस्काइटन, Sehenswürdigkeiten, जेन्स व्यूडिस्काइटन, Sehenswürdigkeiten, जेन्स व्यूडिस्काइटन। Sehenswürdigkeiten gefunden. तो इवन मैं कुछ जगह पे गलत मुड़ गई, है ना, लेकिन मैंने सभी फेमस जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वो ढूंढ लिए हैं। आगे चलो। Also wie eine ganz normale Touristin, obwohl ich jetzt hier lebe. मतलब बिल्कुल ये नॉर्मल टूरिस्ट की तरह मैंने ढूंढी सारी चीजें, के बावजूद मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पर रहनी हूँ, इसके बावजूद मैंने सब चीजें एक टूरिस्ट की तरह देखी, है ना, ये ऐसा कहना चाह रही है। ओके पलाश, आ वाला रीड करो। Wirklich schon ist die Altstadt mit den historischen Gebäuden, bunten Fassaden und schmalen Gassen. Mittendrin steht auch das Wahrzeichen von Zürich, das Großmünster, eine schöne alte Kirche, wo auch regelmäßig Konzerte stattfinden. Außerdem kann, क्या सर? हाँ पूरा करो एक बार। हाँ, außerdem kann man auf einen der Türme steigen und hat einen schönen Ausblick auf die Stadt. ओके रीड ट्रांसलेट करो। हाँ, um, uh, I found the old city with the historical buildings and like so facade का मतलब facade जो होता है क्या फसाडी like होती है, जैसे कोई दीवार खड़ी है वो फसाडी तो नहीं हाँ सामने। जैसे ओके हमारे जयपुर में आपने वो देखा है हवा महल, हवा महल फसाडी है अपनी, है ना। ओके सर तो ये कह रही है कि I found the old city with the historical buildings and the beautiful facades and so Schmalen का नैरो, मतलब स्मॉल मतलब नैरो, नैरो ओके बोलते हैं, साइड स्ट्रीट्स होती है, छोटी छोटी गलियां ऐसे। ओ ओके तो and like narrow alleys very nice हम्म। in the middle was the so वार्ड bar साइसन क्या होता है? section. लैंडमार्क्स। Okay, so in the middle were also the landmarks of Zurich. Zurich. हम्म Um, Grossmünster, I think landmark का नाम है, is a nice old church where concerts regularly take place. रेगुलरली कॉन्सर्ट्स होती है वहां पे। हाँ, except that a person can find नहीं can man. देखो Sir, इसके अलावा कान मन ऑफ आइनन देयर टुर्म स्टाइगन, एक टुर्म टावर है, उस पे भी आप चढ़ सकते हो ऊपर ना। and have a nice view of the व्यू फ्रॉम city. ऑफ द सिटी, वहां से आप अच्छा व्यू दिखेगा। तो ये हाँ दिख रहा है आपको, देखो फर्स्ट आ वाला कहाँ पे आया था? ये रहा द्राई, द्राई था शायद ना, द्राई का ही था ना। हाँ था सर आ सर वाला तो सियर का था, ऊपर दिख रहा है ना सर आपको, आ पूरा फोर्थ देखो का था ऊपर, हाँ फोर्थ का ऊपर जाके देखो, सॉरी, वो टावर दिख रहा है ना ऊपर, वहां से व्यू दिखेगा आपको, तो ये था, राइट। श्रुति बी वाला रीड करो। रुको आप मत करो, रुको बे, वो करो, यस रुको रुको, श्रुति आप नहीं, अ, आप नहीं, कपिल जी आपकी क्लास जी सर। 7:30 स्टार्ट होगी। हेलो कपिल जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर। आपकी क्लास 7:30 स्टार्ट होगी, है ना?
তো আমি বলছিলাম যে শরীর কেমন আছে? ये दूसरी क्लास चल रही है अभी, है ना? लीव कर दीजिए एक बार। हम्म। प्रमोद, बे वाला रीड करो दोस्त। Einen noch viel tolerant Ausblick hat man allerdings von Utilberg, dem Hauswerk vom Zürich. Oben Fan vom Lärm der Stadt gibt es sogar ein schönes Restaurant. Wer zu faul ist, auf den Berg zu wandern, kann auch mit der Bahn rauf, rauffahren. Okay. Einen noch viel tolleren Ausflug hat man allerdings von उटलीबर्ग। उटलीबर्ग की कोई जगह की बात हो रही है, देखो ये शायद द्राई वाला है, ये फोटो द्राई था शायद ना। देखो बे वाला Yes, sir. है ना। देम हाउस बैग फोन श्यूरिश, पहाड़ी पे कोई घर है वहां की बात हो रही है ना। ओबन फैन फ्रॉम लैम दे स्टार्ट, मतलब सिटी के जो शोरगुल होता है उससे दूर होते हो आप। गिफ्ट जोगर एंड शोनेस रेस्टोरेंट, एक सुंदर रेस्टोरेंट भी है वहां पे। वेयर सू फाउलिस, हु इज टू लेजी ऑफ देन बैग सु वांडन, जो मतलब वांडिंग नहीं करना चाहता पहाड़ी पे। कान आउक मिट देयर बान आउफ फार राउफ फारन, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, वैसे पैदल का रास्ता है, नहीं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो। समझ गए बात को? ट्रेन भी जाती है वहां पे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ Yes, दोस्तों। sir. ओके, तो ये फोटो हो ही गया। ओके, अब रीड करो से वाला, श्रुति। Okay, sir. Mein Favorit ist natürlich der Zürichsee. हम्म। Er ist sicher einer der Hauptgründe für die hohe Lebensqualität in dieser Stadt. Nirgend, nirgend, nirgendwo ist es schöner. Hier treffen sich alle Schürscher, Schürscherinnen. Man kann schwimmen, spazieren gehen oder eine Bustour machen. Oder auch einfach nur in einem der zahlreichen Cafés sitzen, auf den See schauen und sich entspannen. Schwimmen kann man aber auch in der Limmat, dem Fluss, der durch Zürich fließt. Es gibt sogar richtige Flussbilder, die von den Einheimischen Wadi genannt, genannt werden. श्रुति आगे बोलो। मेरा फेवरेट क्या है? श्यूरिश लेक है ना? श्रुति, Yes, आवाज आ sir. रही है? ट्रांसलेट Yes, करो। sir. जी सर। उसका फेवरेट सुरेश लेक है। और सर हाफ ग्राउंड क्या होता है? हाउ ग्रुंड हो गया मेन रीजंस, वन ऑफ द मेन ओके सर। रीजन ऐसे बोल सकते हो ना, फॉर द हाई ओके सर। क्वालिटी लाइफ। और नीलबैंडो का? मतलब यस निर्गेंड वो सर, इस आपने एस तो बोल शोना, दिया। मतलब कहीं भी इतना सुंदर नहीं है जितना यहाँ पे, ये कैसा कहना चाह रहा है? ओके निर्गेंड सर। वो मतलब वहाँ नो वेयर, क्या सर? नो वेयर
कहीं पे भी नहीं है, नो प्लेस, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो इतना सुंदर हो, ये ऐसे कहना चाह रहा है। ओके सर। निर्घृण वो का मतलब है नो प्लेस, नो, नो और वे। वहाँ वो, चलो। यस सर, वहाँ वो सूरज के लोगों से मिलता है। नहीं, सूर्य के लोग नहीं मानकर मिलता। सूर्य, वहाँ, जो सूर्य में लेके रहने वाले लोग हैं वो मिलते हैं वहां पे आके, उस पे लेक पे बैठते होंगे, ओके, स्पोर्ट एक्टिविटी करते होंगे, जो भी हो, है ना। हम्म। जैसे फॉर यस एग्जांपल सर, दे रखा है, देखो। वहाँ उस लेक पे आके वो स्विम कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। आप बूस्ट वो टूर मतलब बोटिंग ना सर? देखो, स्विमिंग कर सकता है, स्पासियन गेन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, या फिर बोट टूर कर सकते हो, रेंट पे लेके, या बोट चलती होंगी, बोट बोट टूर कर सकते हो वहां पे। आगे चलो। यस सर। और या अनगिनत। एक कैफे पे बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ना सर? सालराइसन कैफेटेरिया मतलब, सालराइसन में अनगिनत, अनगिनत कैफेटेरिया है, वहां पे बैठ सकते हो आराम से, चाय कॉफी, पिज्जा बर्गर, जो भी आपको खाना खा सकते हैं, राइट। यस सर। और लेक को देख सकते हो वहां पे बैठ के, और खुद रिलैक्स कर सकते हो। आगे चलो। यस। लिमार्ट का मतलब क्या है सर? ये मान कोई जगह का नाम है? लिमार्ट। नहीं नहीं, स्विमेन कान मन आबर आउक इन देयर लिमाट, कोई रिवर का नाम है, उसमें भी कर सकते हो स्विमिंग आप ना, ओके जो सर। सूरिश में होके बहती है ना। आ रहा है ना, देयर दुश यस। शूरिश फ्लीस्ट। हम्म। आगे चलो, श्रुति रीड करो। आगे का जोगर क्या है सर? इवन, ओके, फ्लूस मुझे समझ बैडर नहीं लिखा आ रहा हुआ है। सर लास्ट। फ्लूस बार्ड क्या होता है पता है आपको? हाँ भाई। नो सर। फुटबाथ्स होते हैं, फुटबाथ्स उनको बोलते हैं, फ्लूस बैडर। इनको पहले उनको बाडी बोला जाता था, बाडी मेंशन किया जाता था। फुट बात समझते हो क्या? शायद पैरों को बात कराने का कुछ बना हुआ होगा, या तो। हाँ जी। यस सर। तो कुछ जगह होंगी वहां पे, आप पैरों को बात कराने के बैठ गए, ऐसा कुछ होगा। उनको पहले क्या बोला जाता, बाडी बोला जाता था, है ना। गुड। ओके। और कौन है? सबने पढ़ लिया, चार पढ़ लिए क्या हम लोगों ने? तीन ही क्यों पढ़े भाई? तूने पढ़ तो लिया। यस सर। फिर तो भाई पढ़ा तो है ही ना, सबका नंबर आ गया ना। ओके, सबसे पहले किसने पढ़ा था? तूने पढ़ा था भाई, तो डे वाला पढ़ दे भाई। हम्म। इंडस्ट्री थिएटर। हाँ, ज्यूरिच के बेस्ट में इंडस्ट्री एरिया है, वो भी अच्छा लगता है, ग्रेट लगता है मुझे। मोटोरन गिबाउट मतलब, पहले वहां पे जहाज और मोटोरन मतलब इंजन बनाए जाते थे। आगे चलो। कुल्टूर मिटेलपुंक्ट, तो heute stehen Kunst, Design und Kultur im Mittelpunkt, तो आज वहां पे आर्ट डिजाइन और कल्चर है, ये कहना चाह रहा है। और एस एस आई डिस्ट्रिक्ट ट्रेंड थिएटर, ये एक ट्रेंडिंग एरिया है आज के टाइम पे ना। हम्म। देयर
मीटर है। तो मतलब वहां पे एक सबसे ऊंची बिल्डिंग है सिटी की जो करीब 126 मीटर ऊंची है, प्राइम टावर के नाम से जानी जाती है ना, वो वहां पे खड़ी हुई है, ऐसा कहना बेफिंडज जैसा रहा है ना। रुक जाओ बस, थैंक यू। पलाश, यू ब्रिंग इन से पढ़ो। Yes, sir. हम्म हाँ सर, यू ब्रिंगन्स बिनिश इमम, यहाँ से पढ़ना है ना। हम्म Übrigens bin ich immer mit dem Fahrrad, das hier Velo heißt, rumgefahren. In Zürich kann man sich nämlich bei Zürich Road kostenlos Fahrräder mieten. Man muss nur 20 Franken Kaution bezahlen. Das Ganze ist eine soziale Initiative. तो इसको pronounce कैसे करेंगे? इंग्लिश की तरह या फिर इनिशिएटिव Initiative bei der Flüchtlinge, zum Beispiel lernen Fahrräder zu reparieren. So können Sie dann hoffentlich eine Stelle in einer Werkstatt finden. Außerdem ist es gut für die Umwelt. Bis bald, eure Emma. ओके, ट्रांसलेट करो। So Übrigens का मतलब क्या होता है? यूब्रिंगेंस आया था पहले ना, क्या वर्ड है यूब्रिंगेंस ना, So Übrigens. जैसे बोलते हैं ना एनीवे, अच्छा. बाय द वे। Um, by the way, I am always with a cycle. That is called a वेलो, fellow here. जब स्विट्जरलैंड में Well, साइकिल, जैसे जर्मन में क्या बोलते हैं, दास फाराड, स्विट्जरलैंड में बोलते हैं वेलो। आर्टिकल दास okay. लिखा हुआ है नीचे देखो, तो फाराड को इसको वेलो बोल। वेलो प्रोनाउंस करेंगे या फिर फेलो वेलो वेलो, प्रोनाउंस करेंगे? फेलो नहीं है, वेलो Okay, पढ़ेंगे। okay. That is called a velo here. Um, when I'm like riding. Um, रूम के in फारन मतलब, Zurich. देखो रूम फारन वर्ब है, रूम फारन मतलब गो फॉर ए राइड। तो मैं हमेशा, एनीवे में हमेशा साइकिल से, जिसको बोला वेलो बोला जाता है, उसके साथ में राइड करती थी, यहाँ पे ये कहना चाह रही Okay, so हूँ। in Zurich, can a person, namely by, namely by Zurich Road, um, so kostenlos, फ्री, फ्री विदाउट एनी मनी। okay, can rent a cycle for free. Um, a person must only pay, नहीं, so पे ही हुआ आपको ना यहाँ केवल पर कि केवल 20 फ्रांकन काउसियन देनी पड़ेगी उसके लिए। काउसियन क्या होती है, वापस मिल जाती है, सिक्योरिटी। okay, so a person must only pay 20 francs as a caution, like कोई चीज हुई ना। um the rest, नहीं, the complete thing is a social initiative. um so Flüchtlinge ब्रूसलिंग ये क्या उनको है? बोलते हैं, ये होते हैं ना जो माइग्रेंट्स जो जाते हैं उनको बोलते हैं। At the migrants या for the migrants? मतलब ये कह रहा है कि द गांसेस eine soziale इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है, सोशल इनिशिएटिव है उनका। और वो दो फ्रुटलिंग है ना, दो बाई देयर फ्रुटलिंग, उनके द्वारा at सीखा जाता है, साइकिल्स रिपेयर की जाती हैं, है ना, ये मतलब आ रहा है। okay. आप um सीख भी सकते हो वहां पे ना, वो जो उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी बात हो रही है। okay, so they can hopefully find a place in a work, they can hopefully find a place in a workplace. Yeah, except that it is good for the environment. um see you, सुन, you are, सुन, तुम हाँ, लोगों की एमा। तो एक वर्क स्टार्ट है, वर्क स्टार्ट को देखो वहां क्या बोलते हैं, गराज। जर्मन में आउटो वर्क स्टार्ट बोलते हैं कार गैरेज को, और उसमें बाद वहां गराज बोला जाता है स्विट्जरलैंड में, है ना। वेलो, साइकिल को वेलो बोला जाता है। और जो लाइसेंस होता है फारसाइन, फारसाइन नहीं सॉरी, टिकट जो होता है आपका,
वहां उसको विलेट बोलते हैं। समझो, टिकट जो होता है उसको वहां पर विलेट बोलते हैं। ऐसे पार्कन जो वो है वहां उसको पार्किरन बोलते हैं स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज थी, ये टेक्स्ट था आपका। राइट, टाइम हो गया है, डिसाइड टू सोम। ये कल करेंगे, छोटा सा बचा है एक पेज, फिर अपन अगले चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? राइट, हैप्पी? अब तो 1.5 घंटे पढ़े हो, पढ़ाया आप लोगों ने आज। हो ही गया, खत्म है ना। चलिए कल मिलते हैं। auf Wiedersehen, चाओ चाओ, बाय बाय, bis morgen। Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen। युवराज दोबारा ज्वाइन करना है ना? Auf Wiedersehen.